بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيب قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن
فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيها وزيناها وما لها من فروج
والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. والنخل باسقات لها طلع نضيد. رزقا لعبادي وأحيينا به بلدة ميتا. رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس والثمود. وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالحق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية
مرضيا فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا
أنزلناه في ليلة القدر فما أدراك ما ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شأنك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله
وآله الأطهار اللهم صل على محمد बर मोहम्मद वाले मोहम्मद बावाज़ बुलंद सलावात। हज़रात मोमिनीन, जहाँ कहीं मेरी आवाज़ पहुँच रही है, बसत खुलूस गुजारिश है कि इमाम बारगाह में तशरीफ़ ले आएँ। आज की अज़ीम शान महफ़िल यौम शब्बीर ज़ैनब के उन्वान से अंजुमन सिपाही हुसैनी की जानिब से मुनक़िद की गई। आज की इस महफ़िल में हमारे मोहतरम और मुअज़्ज़म बैरूनी शोराए कराम में जनाब मोहतरम डॉक्टर नायाब हल्लोरी साहब, जनाब मोहतरम मारूफ सिरसवी साहब, उस्ताद शायर जनाब मोहतरम मेयार जरवली साहब और पूरी दुनिया में अपनी आवाज़ से जाना पहचाना जाने वाला हिंदुस्तान की महफ़िलों का कामयाब तरीन शायर जनाब मोहतरम सुहैल बस्तवी साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। मकामी शोराए कराम में इज़्ज़त माब जनाब मोहतरम मंजूर साहब आज़मी, जनाब मोहतरम डॉक्टर शऊर साहब आज़मी, जनाब मोहतरम कैसर अकील साहब नौगामी, जनाब मोहतरम नूर कानपुरी साहब, जनाब मोहतरम आरिफ जौनपुरी साहब और ज़मा सल्लमहू, ये शोराए कराम नज़रान अक़ीदत पेश करेंगे। मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ आज की इस जश्न की खिताबत ख़तीब अहल बैत हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद अज़ीज़ हैदर ज़ैदी साहब क़िबला ख़िताब फरमाएंगे। मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ मौलाना मौसूफ़ से गुजारिश कर रहा हूँ कि स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। आप हज़रात इस्तक़बाल करें नारे सलावात से। मौलाना अज़ीज़ हैदर साहब से गुजारिश है स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। मैं गुजारिश कर रहा हूँ उस्ताद शायर जनाब मोहतरम मेयार जरवली साहब से कि आप तशरीफ़ ले आएँ, स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ। जनाब मोहतरम मेयार जरवली साहब सलावत पढ़ लें आप हज़रात मिलजुल के मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। गुजारिश गुजार हूँ जनाब मोहतरम सुहैल बस्तवी साहब से कि स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ। जनाब मोहतरम सुहैल बस्तवी साहब बावाज़ बुलंद सलावात। मैं मोमिनीन कराम और मुंतज़मीन से भी गुजारिश कर रहा हूँ जो बाहर तशरीफ़ फरमा है कि इमाम बारगाह में तशरीफ़ ले आएँ। जनाब नूर कानपुरी साहब मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मैं गुजारिश कर रहा हूँ तशरीफ़ ले आएँ। जनाब मोहतरम हमारे शहर के उस्ताद शायर जनाब मोहतरम नूर कानपुरी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। आप हज़रात इस्तक़बाल फरमाएँ जनाब नूर कानपुरी साहब का बावाज़ बुलंद नारे सलावात से। आ जाए नूर भाई। जनाब आरिफ जौनपुरी साहब तशरीफ़ ले आएँ। नहायत खुशगुलू और मुतरन्निम शायर जनाब मोहतरम आरिफ जौनपुरी साहब इस वक्त हिंदुस्तान की महफ़िलों का एक उभरता हुआ नाम जनाब आरिफ जौनपुरी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ आरिफ जौनपुरी साहब से कि स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ। सलावात पढ़ लें आप हज़रात मिलजुल के मोहम्मद वाले। जो अफराद पीछे बैठे हैं आगे की सारी नशिस्तें भी आप ही के लिए हैं, तशरीफ़ ले आएँ। आगे आ जाओ भैया, आप हज़रात भी आगे आ जाइए। चचा आगे आइए आप। हाँ हाँ बिल्कुल तशरीफ़ ले आएँ, आगे आइए। अच्छा वो माइक की वजह से। मोमिनीन कराम जो बाहर तशरीफ़ फरमा है
उनसे भी गुजारिश है कि तशरीफ़ ले आएँ। आज की इस महफ़िल में, अज़ीमुश्शान महफ़िल में इंशाअल्लाह थोड़ी देर के अंदर अंदर मोमिनीन कराम तशरीफ़ लाएँगे। आज की इस अज़ीमुश्शान महफ़िल में हमारे मेहमान शोराए कराम में जनाब मोहतरम डॉक्टर नायाब हल्लौरी साहब, जनाब मोहतरम मारूफ सिरसवी साहब, जनाब मोहतरम मेयार जरवली साहब, जनाब मोहतरम सुहैल बस्तवी साहब तशरीफ़ ला चुके हैं, जो इंशाअल्लाह बारगाह इमाम हुसैन और बारगाह शरीकतुल हुसैन जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा में नजरान अक़ीदत पेश करेंगे। उसके अलावा हमारे मकामी मुअज़्ज़ज़ शोराए कराम में जनाब मोहतरम मंजूर आज़मी साहब, जनाब मोहतरम डॉक्टर शऊर आज़मी साहब, जनाब मोहतरम कैसर अकील नौगामी साहब, जनाब मोहतरम नूर कानपुरी साहब और जनाब मोहतरम आरिफ जौनपुरी साहब और जमा सल्लमहू, ये शोराए कराम हैं जो बारगाह मौला में नजरान अक़ीदत पेश करेंगे। आइए जावेद भाई तशरीफ़ ले आएँ। आप हज़रात एक बार और मिलजुल के सलावात पढ़ें मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। आज की इस तकरीर में, आज के इस जश्न की तकरीर यानी खिताबत फरमाएंगे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद अज़ीज़ हैदर साहब क़िबला, जो तशरीफ़ ला चुके हैं। आप हज़रात सलावात पढ़ें। आ जाए रईस भाई, आगे आइए, रईस भाई आगे आइए, आपको पढ़ना भी है। मुंतज़मीन से गुजारिश है कि बाहर जो मोमिनीन तशरीफ़ फरमा हैं उनको अंदर भेज दें। बाज़ बरादरान जो बाहर हैं मैं देख रहा हूँ, हमारे मुंतज़मीन से गुजारिश है, जो वर्किंग कमेटी है उन मेम्बरान से भी गुजारिश है कि वो मोमिनीन जो बाहर खड़े हैं उनको अंदर लेकर अब वो ख़ुद भी आ जाएं। मोमिनीन धीरे धीरे इंशाअल्लाह आ जाएंगे। मेहमान शोराए कराम तशरीफ़ ला चुके हैं जनाब मोहतरम डॉक्टर नायाब हल्लौरी साहब, जनाब मोहतरम मारूफ सिरसवी साहब, जनाब मोहतरम मेयार जरवली साहब, जनाब मोहतरम सुहैल बस्तवी साहब, मकामी शोराए कराम में जनाब मंजूर आज़मी साहब, जनाब शऊर आज़मी साहब, जनाब कैसर अकील नौगामी साहब, जनाब नूर कानपुरी साहब, जनाब आरिफ उतरौलवी साहब और जमा सल्लमहू। तकरीर हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद अज़ीज़ हैदर ज़ैदी साहब फरमाएंगे। आप हज़रात से गुजारिश है एक मरतबा बाआवाज़ बुलंद नाराए सलावात पढ़ लीजिए। आइए हज़रात मक़ासदे का आगाज़ कर देते हैं। मोमिनीन धीरे धीरे तशरीफ़ लाएँगे। मैं बसत खुलूस गुजारिश करूँगा ख़तीब अहले बैत आली जनाब मौलाना अली हुसैन क़ुम्मी साहब से कि वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। मौलाना अली हुसैन साहब से गुजारिश है कि तशरीफ़ ले आएँ। आ जाइए, क़िबला तशरीफ़ ले आएँ। मैं बसत खुलूस गुजारिश कर रहा हूँ, मौलाना अली हुसैन क़ुम्मी साहब लखनऊ से तशरीफ़ लाए हुए हैं, आप स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। आप हज़रात इस्तकबाल करें बाआवाज़ बुलंद नाराए सलावात से। वह स्टेज पे आइए। अरे जब जाना होगा चले जाइए, ऊपर आइए, आइए, आपकी जगह यहाँ है, क़िबला तशरीफ़ ले आए। ठीक है, जब जाना होगा चले जाए, हम रूम थोड़ी लेंगे। आइए हज़रात आगाज़ करते हैं। परवरदिगार हुज्जत आखिर को भेज दे, परवरदिगार हुज्जत आखिर को भेज दे, हम देख लें जहान में आना हुसैन का। परवरदिगार हुज्जत आखिर को भेज दे। जब भाई मिसरे देखिएगा, 2 साल पहले एक दुआइया कता कहा था, चाहता परवरदिगार हुज्जत आखिर को भेज दे, हम देख लें जहान में आना हुसैन का। फिर से हो जुल्फ़िकार की ज़द पर गुलूए जुल्म, या रब दिखा दे फिर से ज़माना हुसैन का। फिर से हो जुल्फ़िकार की ज़द पर गुलूए जुल्म, या रब दिखा दे फिर से ज़माना हुसैन का। गुजारिश कर रहा हूँ जनाब मोहतरम रईस साहब से कि वो तशरीफ़ ले आएँ और बारगाह मौला में नजरान अक़ीदत पेश करें। आप हज़रात इस्तक़बाल करें बाबाज़ बुलंद नारे सलवात से। नारे सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व चार में से इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के हवाले से समात फरमाएँ। सरकार देखिएगा कि फ़िज़ाए जहाँ रुख बदलती नहीं है,
फिजाए जहां रुख बदलती नहीं है, हवा अमन की चाल चलती नहीं है। फिजाए जहां रुख बदलती नहीं है, हवा अमन की चाल चलती नहीं है। और ज़रूरत है अब आपकी मेरे मौला, ये दुनिया संभाले संभलती नहीं है। ये दुनिया संभाले संभलती नहीं है। नारे सलवात। कुमे भाई देखिएगा 4 मिसरे और कि सुन ले वो जिनके लिए जिक्र अली बार है। ये बाहर वालों के लिए है। सुन ले वो जिनके लिए जिक्र अली बार है। सुन ले वो जिनके लिए जिक्र अली बार है। जिक्र अली बार है। गैब में बैठा है जो वो हैदर कर्रार। मेरी भाई तशरीफ लाइए। गैब में बैठा है जो वो हैदर कर्रार है। और मुनकिरे अश्के अज़ा इतना ज़रा सोच ले। मेरी बात देखिएगा कि मुनकिरे अश्के अज़ा इतना ज़रा सोच ले। इतना ज़रा सोच ले। पर्दे में बैठा है जो वो भी तो अज़ादार है। पर्दे में बैठा है जो वो भी तो अज़ादार है। नारे सलवात। किसी ज़माने में अख्तर सिरसवी साहब ने इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के हवाले से मुसद्दस कहे थे। उसके 2 बंद मुझे याद हैं। समाज फरमान सरकार अख्तर सिरसवी के कि आखिरी हक़ मुजाहिद सफ़े अव्वल से निकल। आखिरी हक़ मुजाहिद सफ़े अव्वल से निकल। कब से खुशकी में तमन्नाई हैं जल थल से निकल। आखिरी हक़ मुजाहिद सफ़े अव्वल से निकल। कब से खुशकी में तमन्नाई हैं जल थल से निकल। शेर नर मसलहते हिजर के जंगल से निकल। ऐ इमामत के कमर गैब के बादल से निकल। अब सफ़र गैब में तेरा नहीं देखा जाता। हमसे काबे में अंधेरा नहीं देखा जाता। हमसे काबे में अंधेरा नहीं देखा जाता। और बंद मुलाजा कीजिए कि धड़कने महवे दुआ हैं तेरी आमद के लिए। मेरी भाई देखिएगा कि धड़कने महवे दुआ हैं तेरी आमद के लिए। महफिले दहर में आ जीनत मसनत के लिए। मिसले शब्बीर वतन छोड़ दे मकसद के लिए। कब से बेचैन है दीदारे मोहम्मद के लिए। शमए नूरे हिदायत को तजल्ली दे दे। आने वाला हूँ यही कह के तसल्ली दे दे। आने वाला हूँ यही कह के तसल्ली दे दे। तो बहते दरिया में अरीज़े को बहाएं कब तक। कल परसों बढ़ेगा कि बहते दरिया में अरीज़े को बहाएं कब तक। हिजर के शिकवे ज़ुबानों पे न लाएं कब तक। और मांगे तेरी आने की दुआएं कब तक। तू भी आता है न जालिम पे अज़ाब आता है। अब तेरे चाहने वालों को हिजाब आता है। जनाब मोहतरम रईस आज़मी साहब को आप हज़रात समाअत फरमा रहे थे। मखसूस अंदाज में इमाम असर की बारगाह में नजराने अक़ीदत पेश कर रहे थे। एक मतलब मैं आपकी खिदमत में पेश करूं इमाम असर के हवाले से मुमताज़ भीखपुरी का। मुलाज़ा फरमाइएगा अजीब कैफियत का मतला है। सोहेल सुनिएगा भाई देखिएगा। देखो किबला कौन कहता है इमाम दो जहां पर्दे में है। कौन कहता है इमाम दो जहां पर्दे में है। अपनी आंखों पे है पर्दा वो कहाँ पर्दे में है। कौन कहता है इमाम दो जहां पर्दे में है। कौन कहता है इमाम दो जहां पर्दे में है। अपनी आंखों पे मेरी भाई अपनी आंखों पे है पर्दा वो कहाँ पर्दे में है। वो तो हमें देख रहे हैं। आगाज़ महफिल है
तकरीर होनी है। जितने मोमिनीन आ गए, आप जानते हैं यहाँ का माहौल, अभी आधे घंटे के अंदर हॉल भर जाएगा, मोमिनीन आ जाएंगे। मैं एक बात सिर्फ कहना चाहता हूँ, बिल्कुल 2-3 रोज़ बाद आमद है इमाम की। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, इमाम से पूछा गया, मौला जब आप नहीं होंगे तो हम कैसे रहें, ज़िंदगी गुजारें कैसे? इमाम ने आवाज़ दी, कूनू लना ज़ैना वला तकूनू लना शहना, हमारे लिए इज़्ज़त का सबब बनना, हमारे लिए ज़िल्लत का सबब मत बनना। मैं ये पैगाम दरमियान में भी देना है मुझे, इब्तिदा में भी आप सुन लीजिए। ये स्टेज पर जनाब मेयार जरवली साहब, जनाब मौलाना अज़ीज़ हैदर साहब क़िबला, जनाब नूर कानपुरी साहब, जनाब मौलाना अली हुसैन कुम्मी साहब, जनाब सोहेल बस्तवी साहब और जनाब आरिफ जौनपुरी साहब, ये हमारा स्टेज मेरे इस जुमले की तायीद करेगा और आप हजरात भी, कि इमाम ने फरमाया हमारे लिए इज़्ज़त का सबब बनना, ज़िल्लत का सबब मत बनना। तो अब इसका ये मतलब नहीं है कि घर में इज़्ज़त का सबब बनना, बाहर इज़्ज़त का सबब मत बनना, बल्कि इमाम यही कहना चाहते हैं, घर में रहो तो इज़्ज़त का सबब, महफिल में आओ तो इज़्ज़त का सबब, मजलिस में जाओ तो इज़्ज़त का सबब, सड़कों पर निकलो तो इज़्ज़त का सबब, जुलूस में जाओ तो इज़्ज़त का सबब। किसी भी जगह पर कोई ऐसा काम ना कर देना कि हमारे लिए ज़िल्लत का सबब बन जाओ। आइए हजरात, मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ गुजारिश गुजार हूँ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद अज़ीज़ हैदर ज़ैदी साहब क़िबला से कि आप तशरीफ़ ले आएँ और बारगाह इमाम हुसैन और जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा में नसरी नजराने अक़ीदत पेश करें। बाबाज़ बुलंद नारे सलावात। एक सलवात पढ़ने मिलजुल कर, मोहम्मद व आले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अव्वलीन वल आखिरीन खातमुन नबिय्यीन सय्यदिल मुरसलीन शफीइल मुज़निबीन मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला वस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैत तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन अल-मुतहहरीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल हुसैना मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजात। सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ीज़ान ग्रामी क़द, मुअज़्ज़िज़ सामीईन और हमारे तमाम इस स्टेज पर बैठे हुए शोरा इकराम और हमारे आलिम दीन क़िबला अब्बास कुम्मी साहब और तमाम हमारे सामीईन और मुहिब्बाने मौला इमाम हुसैन और जनाब ज़ैनब कुबरा सलवातुल्लाह सलामुल्लाह अलैहा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला। यकीनन ये जश्न जो यौम शब्बीर व ज़ैनब के उन्वान से जिसका इनेकाद हो चुका है और मेरे सामने सामीईन हैं, शोरा इकराम हैं, उलमा इकराम हैं, मैं आपके सामने सबसे पहले बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में, बारगाह रिसालत माब में, बारगाह मौलाए मुत्तक़ियान और बारगाह जनाब ज़हरा सलवातुल्लाह सलामुल्लाह अलैहा
और बारगाह अइम्मा मासूमीन बिलखुसूस बारगाह यूसुफ़ ज़हरा इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में मैं भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप सब मुबारकबाद पेश करें अपनी तरफ से, अपने वालिदैन की तरफ से, मोमिनीन और मोमिनात की तरफ से, और तमाम ज़िंदा और इस दुनिया से रुखसत होने वाले अइज़्ज़ा क़ारीब मोमिनीन और मोमिनात, उन सब की तरफ से इमाम की बारगाह में, अहले बैत की बारगाह में, खुदा की बारगाह में इन दोनों जश्न जो हो रहा है, इन दोनों की विलादत इसी महीने में शहज़ादी जनाब ज़ैनब और मौला आका इमाम हुसैन की, आइए एक सलवात बावाज़ बुलंद पढ़ के मुबारकबाद पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और मेरी दुआ है कि परवरदिगार हमारी इस इबादत को कबूल फ़रमाए। शुअरा इकराम जो नजरान अक़ीदत पेश करे, परवरदिगार उसे कबूल फ़रमाए। इमाम हुसैन के सदक़े में शरफ़ कबूलियत इनायत फ़रमाए, और जो इस जश्न के बानियान हैं, परवरदिगार उन सब की तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फ़रमाए। यह हकीकत है कि हमें अभी हमारे इस महफ़िल के नाज़िम आली जनाब मौलाना और शायर अहले बैत उम्मीद आज़मी साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि हमें शरीफ सिर्फ़ और शराफत का लिबास सिर्फ घर में नहीं पहनना है, बल्कि हम जहाँ हों, जिस जगह हों, जिस हाल में हों, हर हाल में शराफत बाकी रहे। देखिए तवज्जो कीजिएगा, हर हाल में हमारी शराफत आया होनी चाहिए, और हमें ऐसा बनना है कि हमें देखा जाए। तवज्जो कीजिएगा, क़िबला तवज्जो चारों शोरा इकराम से भी, कि मुझे तो सिर्फ इस बात पर उम्मीद साहब के एक हदीस याद आ रही है, हदीस कुदसी कि कुदरत ने, परवरदिगार ने ऐलान किया कि कुन तो कंज़न मख्फिया। अल्लाह ने कहा कि मैं छुपा हुआ ख़जाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, तो मैंने किसे खल किया? आले मोहम्मद को खल किया। तवज्जो कीजिएगा, हमें कैसा बनना है इस दौर में। हम अगर अहले बैत के चाहने वाले हैं, आले मोहम्मद का कलमा पढ़ने वाले हैं, अली और आका हुसैन के मानने वाले हैं, हुसैन के आज़ादार हैं, मातमदार हैं, जश्न इमाम हुसैन में हम तशरीफ़ लाए हैं, हमें सिर्फ़ और सिर्फ इस जश्न में नहीं, बल्कि हमारी पूरी ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए। देखिए गौर कीजिएगा, अल्लाह ने अपनी मारिफत के लिए, अपनी पहचान के लिए, अपनी शनाख्त के लिए किसे खल किया? इन 14 हस्तियों को। यही तो है, मैं छुपा हुआ ख़जाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, तो मैंने इन्हें खल किया। किस लिए? ताकि मैं पहचाना जाऊं, मेरी मारिफत हो। किसके ज़रिए? आले मोहम्मद के ज़रिए। कैसे? इनका किरदार देखा जाए। देखिए गौर कीजिएगा, इनके रहम को देखा जाए, मेरी रहमानियत समझ में आए। इनके लुत्फ को देखा जाए, मेरा करम समझ में आए। इनकी बख्शिश को देखा जाए, मेरी बख्शिश समझ में आए। इनका करम देखो, मुझे समझो। इनको देखते जाओ, मुझे पहचानते जाओ। तो मुझे सिर्फ एक बात कहना है अपने तमाम सुनने वालों से इस जश्न के हवाले से, कि जैसे अल्लाह अपनी मारिफत के लिए, जैसे अल्लाह ने अपनी मारिफत के लिए आले मोहम्मद को खल्क फरमा रहा है, ऐसे ही अली के चाहने वाले भी इसीलिए हैं ताकि उनका किरदार देखा जाए, अली को पहचाना जाए, उन्हें देखा जाए, हुसैन को पहचाना जाए, उन्हें देखा जाए, जहरा को पहचाना जाए, उन्हें देखा जाए, हसन और हुसैन को पहचाना जाए, उन्हें देखा जाए तो ये समझ में आए कि जब मानने वाले ऐसे हैं तो फिर इनके आका कैसे होंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।
जब ये आज़ादार ऐसे हैं, ये मातमदार ऐसे हैं, ये हुसैन पर फिदा होने वाले ऐसे हैं, ये हुसैन पर कुर्बान होने वाले ऐसे हैं, तो फिर आका हुसैन कैसे होंगे? एक सलवात पढ़े मिलजुल कर मोहम्मद वाले मोहम्मद। हमारे शोरा इकराम जनाब नायाब हल्लौरी साहब और जनाब मारूफ सिरसवी साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। इस्तकबाल करें बावाज़ बुलंद नारे सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। गौर कीजिएगा, हमारा किरदार इस दौर में ऐसा ही होना चाहिए कि हमें देखा जाए और आले मोहम्मद को पहचाना जाए, हमें देखा जाए इमाम हुसैन को पहचाना जाए, हमें देखा जाए आले मोहम्मद की मारिफत खुद ब खुद आए, लोग सवाल करें कि आप कौन हैं। देखिए गौर कीजिएगा, छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मारूफ भाई हमारे नायाब भाई तवज्जो कीजिए, छठे इमाम की बारगाह में एक शख्स आया, चाहने वाला है, दूर करिए में रहता है, जहां दुश्मनों का नरगा है, हालात साजगार नहीं है। वो कहता है मौला हम कैसे वहां कहें कि हम आपके मानने वाले हैं, आपके चाहने वाले हैं, आपके मुहिब हैं। वो हालात ऐसे हैं कि लोग वहां गैर हैं, आपके दुश्मन हैं, किस तरीके से हम वहां पर तबलीग करें? जानते हैं इमाम ने क्या कहा? देखिए शोराए कराम है और साहिब फहम मजमा है, गौर कीजिएगा। इमाम ने सिर्फ एक जुमला इरशाद फरमाया छठे इमाम ने कि जाओ और वहां जाके खामोश तबलीग करो। क्या बात है, वाह 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 वाह। वहां जाओ और जाके खामोश तबलीग करो। चाहने वाला था, कहने लगा मौला ये खामोश तबलीग क्या होती है? मौला ये खामोश तबलीग कैसे होगी? भाई तबलीग तो जबान से होगी, बोलेंगे तो होगी, कहेंगे तो होगी। और इमाम ने कहा जाओ और खामोश तबलीग करो। मौला खामोश तबलीग? इमाम ने कहा कि देखो अगर दुश्मन है वहां तो फिर वहां तुम्हें अपने आप को जाहिर नहीं करना है, मगर अपना किरदार ऐसा बना लो, अपनी गुफ्तार ऐसी रख लो, अपना इखलाक ऐसा कर लो, अपना किरदार ऐसा पेश करो कि वो खुद सवाल करें कि तुम किसके मानने वाले हो। जब पूछे तो कह देना कि हम इमाम के मानने वाले। वाह 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 वाह। गौर करें आप, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। जब अपने किरदार को पेश करोगे तो जमाना सवाल करेगा तुम किसके मानने वाले हो। तुम्हारा इखलाक तो निराला है, तुम्हारा किरदार तो आया है कि हम जैसा नहीं है, फिर कहो कि तुम किसके मानने वाले हो। यह है खामोश तबलीग, यानी अपने आज़ा और जवारे के ज़रिए, अपने अखलाक के ज़रिए, अपने किरदार के ज़रिए, अपनी रफ्तार और गुफ्तार के ज़रिए तबलीग करो खुद ब खुद ज़माना। तो मैं अर्ज़ कर रहा था पैगम्बर इस्लाम की हदीस मैंने आपके सामने पेश की और बड़ी मशहूर हदीस है कि इन्नल हुसैना मिसबाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजा। पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया कि ये मेरा हुसैन हिदायत का चराग है और नजात की कश्ती है। देखिए तवज्जो कीजिएगा, हुसैन इब्न अली हिदायत के चराग भी हैं और नजात की कश्ती हैं। मैं तो इस हदीस से दो ही माने मैंने अख्ज़ किए हैं कि हमारे लिए भी एक ये दुनिया है और एक इसके बाद दुनिया है। इस दुनिया में हिदायत हर शख्स को चाहिए। अगर हिदायत न मिले तो इंसान से हैवान हो जाएंगे हम। अगर हिदायत न मिले तो इंसान से हैवान हो जाएंगे हम। अगर हिदायत न मिले तो सिराते मुस्तकीम से भटक जाएंगे हम। अगर हिदायत न मिले तो बातिल परस्त हो जाएंगे हम। अगर हिदायत न मिले तो इंसान न कहलाएंगे हम। अगर हिदायत न मिले तो हम वाकई इंसानियत खो देंगे। तो पता चला कि अगर इंसान को इंसान रहना है, देखिए तवज्जो कीजिएगा, अगर इंसान को इंसान रहना है, अगर इंसान को आदमी रहना है, अगर इंसान को अल्लाह वाला रहना है, तो फिर पैगंबर ने फरमाया कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। चिरागे हिदायत हुसैन का नाम है, दरे हुसैन पर आ जाओ, दुनिया में हिदायत मिलती चली जाएगी। अगर हिदायत चाहिए तो दरे हुसैन पर आ जाओ,
दर हुसैन तुम्हारे लिए हिदायत अता करती चली जाएगी और तुम अपने इस मुस्तकीम सिरात मुस्तकीम पर गामजन रहोगे। और दूसरी दुनिया जो हमारी इस दुनिया के बाद है, जहां के लिए बहुत दुआएं होती है। अब मैं चूंकि ये जुमला कहूंगा तो बहुत से जहनों में बात उभर जाएगी कि मौलाना फिर वही अपनी बात लेके आ गए। चूंकि मैं रहमताबाद से ताल्लुक़ रखता हूं, जहां मेरी खिदमत है, आप जानते हैं। भाई एक दुनिया है जो हमें, जहां नजात चाहिए इस दुनिया के बाद। देखिए नबी ने दोनों चीजें कह दी कि हुसैन की जात मेयार है, पैमाना है, कसौटी है, मीज़ान है, तवज्जो कीजिएगा, मरकज है। किस चीज के लिए? इस दुनिया के लिए भी, उस दुनिया के लिए भी। इस दुनिया में हिदायत चाहिए, दर हुसैन पर आ जाओ। उस दुनिया में नजात चाहिए, दर हुसैन पर आ जाओ। जो हुसैन से वाबस्ता है उसे नजात भी मिलेगी, उसे हिदायत भी मिलेगी। एक सलवात पढ़ दे मिलजुल कर, मोहम्मद व आले मोहम्मद। और फरमा रहे इमाम हुसैन की अजमत को कोई नहीं समझ सकता। कायनात का कोई इंसान हुसैन को नहीं समझ सकता। हुसैन को अगर कोई समझे तो या खुदा समझे, या नबी समझे, या उसका वली समझे, यानी हुसैन के घराने वाले समझे, वरना हुसैन को कोई नहीं समझ सकता। देखिए गौर कीजिएगा, हुसैन को कोई नहीं समझ सकता। हम तो हुसैन के कब्र के ऊपर रखी हुई जरी को नहीं समझ सकते। क्या बात है, क्या बात मैंने है। कुछ कहा भाई? वाह वाह वाह। देखिए तवज्जो कीजिएगा, हम तो हुसैन की कब्र पर रखी हुई जरी की अजमत को नहीं समझ सकते। जरी की अजमत को नहीं समझ सकते। मासूम का कौल है कि जो भी जाहिर जरिए इमाम हुसैन से अपने को मस करे, जो भी जाहिर, जो भी कैद नहीं है, कौन, जो भी जाहिर हुसैन का जरिए हुसैन से अपने को मस कर ले, तो खुदा की तरफ से आवाज आती है। और कीजिएगा, आवाज आती है अर्श से कि आज मैंने इसे ऐसे पाक कर दिया गुनाहों से जैसे ये अपनी मां के शिकम से। देखिए गौर कीजिएगा, एज़न निदा, निदा आती है कहां से? अर्श से निदा आती है कि मैंने आज इसे ऐसे पाक कर दिया कि जैसे ये मां के शिकम से पैदा हुआ है। ये पहला तोहफा है, जबकि हुसैन के जाहिर को 70 तोहफे दिए जाते हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह। ये नारा हैदरी, या अली, हैदरी, या अली, हैदरी। या अली। वाह, हुसैन के जाहिर को पहला तोहफा जरी से मस हुआ, गुनाह बख्श दिए गए। जमाना हैरत में है कि हुसैन की जरी से। नायब भाई तवज्जो कीजिएगा, मारूफ भाई और तमाम शोराए किराम क़िबला, देखिए गौर करें सामीन, हुसैन की जरी से मस होकर गुनाह माफ हो जाएंगे। जमाना हैरत में है, परेशान है। क़िबला क्या कह रहे हैं? हम नहीं कह रहे हैं, मासूम कह रहे हैं। गौर कीजिएगा, अब जुमला सुने, ये तो मासूम ने कह दिया, अब मैं अकली दलील पेश कर रहा हूं, फिक्र पेश कर रहा हूं। भाई गौर करें, जरिए हुसैन से मस होके हम जैसा गुनहगार पाक होता है, ऐसे जैसे मां के शिकम से बच्चा पैदा होता है। पूरी तवज्जो जा रहा है एक एक फर्द की, जैसे मां के शिकम से बच्चा पैदा होता है। अब मुझे कहने का हक है कि जिस झूले में हुसैन थोड़ी देर हो, नहीं बात नहीं पहुंची, जिस झूले में हुसैन थोड़ी देर हो, अरे वो झूला इतना मोतबर हो जाए कि वो फितरुस को बालों पर दे दे जिसमें 1400 बरस से हुसैन रह रहे हो। वाह 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 वाह। जिस जरी में हुसैन रह रहे हो, तो अगर वो जरी हमें मासूम बना दे तो हैरत क्या है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए तवज्जो करें मारूफ भाई, मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैं जुमला कहूं, आका हुसैन की शान में जुमला कहूं। मिस साहब
भाई हुसैन तो बहुत बुलंद है, मैंने कहा कोई समझ नहीं सकता। हुसैन की जरी मासूम गर भी है, मासूम साज भी है। क्या बात है, वाह 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 वाह। हुसैन इब्ने अली की जरी मासूम साज भी है, मासूम गर भी है। अब यह अलग मसला है कि इस्मत कौन सी है, लेकिन ज़हन उलझने ना पाए। इस्मत कुबरा और है और ये इस्मत और है जो गुनाहों से महफूज है। सलवात पढ़े मिलजुल कर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। ये है हुसैन की अज़मत। मोहम्मद। हुसैन का पहला दिन, और कीजिएगा, हुसैन का पहला दिन। मैं एक जुमला कहा करता हूं कि हमें दो ही शख्सियत तो नजर आई। एक शख्सियत बाबा की है और एक शख्सियत बेटे की है। बाप की शख्सियत ऐसी है कि अगर लोग अली को समझ लें तो सिराते मुस्तकीम मिल जाए, और अगर लोग बेटे को समझ जाएं तो नजात मिल जाए। देखिए, आप ज़ैनबिया आए हैं, ऐलान हो गया कि सिपाही अंजुमन सिपाही हुसैनी की तरफ से जश्न शब्बीर ज़ैनब है। मोमिनीन को ऐलान कर दिया गया। बहुत सारे मोमिनीन ऐसे होते हैं जो शायद पहली बार आ रहे हो। भाई कहाँ है? का साहब जय जय के पास है, भिंडी बाजार के पास है, मुगल मस्जिद के पास है। रास्ता चलते हुए चले आए, बोर्ड देखते गए, रास्ता चलते चले गए। आज तो गूगल का ज़माना है, मैप का ज़माना है, आपने फिट कर दिया, वो बताती चली गई। मुझे कहना पड़ रहा है, आवाज़ चूंकि वैसे ही है, हमें पता चलता गया यहाँ से लेफ्ट है, यहाँ से राइट है, यहाँ से ये है, यहाँ से वो है, और आप मुतमईन होकर बैठे हुए हैं। दुनिया देख रही है कि अगर मादी नूर से राबिता हो जाए, अगर सिर्फ मादी नूर से राबिता हो जाए तो फिर सुकून के साथ बैठा जा सकता है, मंजिल मिल जाएगी। नहीं पहुंचा मेरा जुमला। अगर मादी नूर से सिर्फ अगर राबिता हो जाए तो सुकून से बैठा जाए, मंजिल मिल जाएगी। तो अगर हकीकी नूर से किसी का राबिता हो जाए तो फिर हम सुकून से क्यों ना बैठे? हमें पता है हमारा राबिता हकीकी नूर से है। गौर कीजिएगा, भाई बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन अगर बोर्ड ना हो, इस मोहल्ले में आने के लिए बोर्ड ना हो, इस एरिया में आने के लिए बोर्ड ना हो, तो आप ये बताइए मंजिल मिलेगी? हो सकता है मुश्किल हो, दुश्वारी हो, परेशानी हो। लेकिन अगर एक बोर्ड लिखा हो कि ये रास्ता ज़ैनबिया इमाम बारगाह की तरफ जाता है, बोरी मोहल्ले की तरफ जाता है ना? देखिए गौर कीजिएगा, तो आप आसानी से पहुंच जाएंगे। अब दुनिया सिराते मुस्तकीम, सिराते मुस्तकीम, सिराते मुस्तकीम नमाजों में रोज तो इकरार कर रही है, मगर उसे कैसे पता चले कि किसका रास्ता सिराते मुस्तकीम है? क्या बात है भाई कोई बोर्ड भी होना चाहिए, वाह। भाई कोई अलामत भी होना चाहिए, कोई निशानी भी होना चाहिए। अब मैं आइए आपको अलामत और निशानी बता रहा हूं। भाई हमने तो यही देखा, सिराते मुस्तकीम चूंकि खुदा का रास्ता है, जब खुदा का रास्ता सिराते मुस्तकीम है तो अलामत क्या है कि किसका रास्ता, किसके रास्ते पर चले तो खुदा तक पहुंचे। तो मैंने कहा एक बाप है कि जिसकी इब्तिदा खुदा के घर से हुई, वाह 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 वाह। जिसकी जिंदगी का बज़ाहिर इख्तिताम खुदा के घर हो रहा है, तो पता चला जिसकी इब्तिदा और इंतहा खुदा के घर हो, उसी का रास्ता सिराते मुस्तकीम होगा। अगर अली के रास्ते पर चलोगे तो सिराते मुस्तकीम मिल जाएगा। अब आइए, हुसैन नजात की कश्ती है, हुसैन नजात के जामिन है। कैसे पता चले? तमाम चीजें छोड़कर आगे बढ़ रहा हूं। फितरुस की बात अभी मैंने की कि फितरुस को गहवारे से मस किया गया, इधर बालों पर उसे अता हो गए, अता हो गए ना। वो कहता हुआ चला, वह मन मिसली अनातिकुल हुसैन, मुझ जैसा कौन है, मैं तो हुसैन के दर का आज़ाद करता हूं। भाई यही गुरूर और तकब्बुर पर तो अल्लाह ने ताकत छीनी थी, मगर ये आज फिर वही अमल क्यों कर रहा है? आज फिर वही अमल क्यों कर रहा है? मैं खुदा की कसम, मिंबर पे मुझे जो अता हुआ है वो मैं आपको दे रहा हूं। मैं मजलिस पढ़ रहा था और मेरे जहन में ये बात आई, तो मेरे जहन में जो बात आई वो आपके जहनों तक पहुंचा रहा हूं। अगर किसी काबिल हो तो महफूज करिएगा।
फितरुस को ये जुर्रत, ये हिम्मत, ये ताकत, जबकि इसी एक जुर्रत पर, इसी एक तकब्बुर पर, इसी एक घमंड पर, इसी एक हर्फ पर कि मुझ जैसा कौन है, अल्लाह ने बालों पर छीन के जजीरे में छोड़ दिया। रवायतों में है कि 750 बरस तक जजीरे में पड़ा रहा, अल्लाह को पुकारता रहा, मगर खुदा ने उसकी तरफ नहीं देखा। मगर ये हुसैन के दर से बालों पर मिले तो ये जुर्रत आई कहां से? मुझे जो फिक्र मिली, मिंबर से वादा कर रहा हूं, मारू भाई तवज्जो कीजिएगा। भाई क्या कहा? इसलिए 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 कि हुसैन की आमद शबे हिजरत के बाद की है। वाह वाह, देखिए शोर आएगा तो। हुसैन की आमद शबे हिजरत के बाद की है। फितरुस ने देखा कि हुसैन उस बाप का बेटा है कि जिसके बाबा ने शबे हिजरत नफ्स को बेच के, वाह वाह, जिसके बाबा ने शबे हिजरत नफ्स को बेच के मर्ज़ी इलाही को खरीद चुका है। तो अब जो यहां से मिलेगा वो सिर्फ हुसैन का नहीं, अल्लाह की मर्जी भी शामिल है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए कह रहा है कि अब तक तो खुदा की सिर्फ मर्जी थी, मगर अब जो मिला है उसमें खुदा भी शामिल है, उसमें हुसैन की मर्जी भी है, अली की मर्जी भी है। सलवात पढ़ दे मिलजुल कर, मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। फितरुस को जुर्रत मिली है शबे हिजरत से। और फरमा रहे आप, पहला दिन हुसैन की जिंदगी का पहला दिन, मैंने कहा कि अली की जिंदगी की इब्तिदा खुदा के घर से, अली की जिंदगी की इंतहा बज़ाहिर खुदा के घर, इसलिए सिरात मुस्तकीम अली की ज़ात है। अब नजात, अगर हुसैन नजात के जामिन है तो ऐसे ही कोई दलील हमारे पास होनी चाहिए। आप पहुंच गए होंगे भाई, दलील तो बड़ी आसान सी है कि हुसैन की जिंदगी का पहला दिन बनामे फितरुस। मैं बड़े आसान से जुमला कह दूंगा, हुसैन की जिंदगी का पहला दिन बनामे फितरुस, हुसैन की जिंदगी का आखिरी दिन, हुसैन की जिंदगी का पहला दिन बनामे फितरुस, हुसैन की जिंदगी का आखिरी दिन बनामे हुर। और फरमा रहे आप, हुसैन ने बता दिया कि जैसे मेरा बाबा खुदा के घर से जिंदगी शुरू करके खुदा के घर में खत्म कर रहा है, ऐसे ही मैं उसका बेटा हूं। मैं पहले दिन भी नजात का जामिन हूं, आखिरी दिन भी नजात का जामिन हूं। वाह वाह वाह, मेरी पूरी जिंदगी नजात की जामिन है। जो जो आएगा उसे नजात मिलती चली जाएगी। जो भी मेरे दर पे आएगा, मुझसे मुंसलिक होगा, मुझसे मोहब्बत करेगा, उसे नजात मिलती चली जाएगी। और फरमा रहे आप, चूंकि ये जश्न यौमे शब्बीर व ज़ैनब के हवाले से है, सल्लल्लाहु सलामुल्लाह अलैहा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले, ये वो शहजादी है जिसे शरीकतुल हुसैन कहा जाता है, जिसे हमारे चौथे इमाम ने कहा आलिमतुल गैर मुअल्लिमा। ये वो मुअल्लिमा है कि जिसे किसी ने पढ़ाया नहीं है, ये वो आलिमा है जिसे किसी ने तालीम नहीं दी है, बल्कि ये वो शहजादी है कि इनकी अजमत के लिए यही काफ़ी है। जुमला सुनिएगा, इनकी अजमत के लिए यही काफ़ी है कि जब शहजादी की विलादत हुई है तो पैगंबर इस्लाम कहीं सफ़र पे थे। जनाब सिद्दीक़ ताहिरा ने मौलाए कायनात की गोद में शहजादी को दे के कहा कि अबुल हसन, आप इस बेटी का नाम रख दें, आपके यहाँ बेटी हुई है, मुबारक हो। जब ये कहा कि नाम रख दें तो मौलाए कायनात मुस्कुराए और कहा आपको भी मुबारक हो, शहजादी की विलादत आपको भी मुबारक हो, सानिया ज़हरा की विलादत आपको भी मुबारक हो। मगर अली ने नाम रखने में पहल नहीं की, का नबी के होते हुए मैं सबकत नहीं कर सकता, मैं रसूल अल्लाह के होते हुए सबकत नहीं कर सकता, मैं आगे नहीं बढ़ सकता, मैं इंतज़ार करूंगा नबी का। 2 दिन के बाद पैगंबर इस्लाम मदीने तशरीफ़ लाए और मौलाए कायनात ने शहजादी को उनकी आगोश में दिया और कहा आपको नवासी मुबारक हो, आपको नवासी मुबारक हो।
आप इसका नाम रख दें। अल्लाह अकबर। मौलाए कायनात ने क्या कहा? नबी के होते हुए मैं सबकत नहीं कर सकता। जब नबी से अली ने कहा कि आप नाम रखें, तो मौलाए कायनात मुस्कुरा के फरमाते हैं कि खुदा के होते हुए मैं सबकत कैसे करूं? खुदा के होते हुए मैं सबकत कैसे करूं? और जैसे ही ये जुमला नबी के दहन से निकला, उधर से वही आ गई, उधर से पैगाम आ गया कि अल्लाह के नबी, आप इस बेटी का नाम ज़ैनब रख दें, यानी ज़ैनब बाप की जीनत। और कीजिएगा, अपने बाप की जीनत। तो एक जुमला कह दूं, अरे जिस शहजादी का नाम खुदा वही के जरिए कुरान की आयतों की तरह उतार दे, खुदा कुरान की आयतों की तरह जिस बेटी का नाम ज़ैनब रख दे, जरा अंदाजा कीजिए कि वो आलिमा गैर मुअल्लिमा न होगी तो और क्या होगी? सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। पूरी कायनात को जीनत है तो मौलाए कायनात से, ये तो आपको पता है। मेहराब को जीनत है तो अली के जरिए, मिंबर को जीनत है तो अली के जरिए, मसनद को जीनत है तो अली के जरिए, सारी कायनात को जीनत है तो अली के जरिए। पूरी कायनात अगर मुज़य्यन है तो वो अली इब्न अबी तालिब के जरिए, मगर अली की जीनत का नाम ज़ैनब है। अली की जीनत का नाम ज़ैनब है। खुदा की कसम, ये वो शहजादी है जो शरीकतुल हुसैन बन के रही। ये वो शहजादी है कि जिनके लिए तारीख में एक वाक़या मिलता है कि आप 4 साल की थी, 4 साल का सिन है। मौलाए कायनात कहीं से आए, साथ में 2 एक मेहमान आए घर में। जनाब सिद्दीक़े ताहिरा से कहा कि मेरे साथ कुछ मेहमान हैं, उनके लिए कुछ ताम का इंतज़ाम किया जाए, ग़िज़ा का इंतज़ाम किया जाए। बीबी ने कहा घर में कुछ तो नहीं है। हाँ, मैंने अपनी बेटी के लिए थोड़ा सा ताम, थोड़ा सा ग़िज़ा मैंने रखा है। देखिए गौर कीजिएगा, मैंने रखा है। खुदा की कसम, इस घर के बच्चे भी दुनिया समझ नहीं सकती। 4 साल का सिन है। जैसे ही ये सुना ना कि मैंने ज़ैनब के लिए रखा है, माँ ने कहा, फौरन आगे बढ़ी और आगे बढ़ के कहती हैं, मादर गिरामी, आप वो जो मेरे लिए खाना निकाल के रखा है आपने, उसे आप बाबा के मेहमान को दे दें, मैं बाद में खा लूंगी, मेहमान को पहले खिलाऊंगी। अल्लाह अकबर। जिसका नजरिया 4 साल में ये हो, क्या बात है, वाह 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 वाह। वो करबला में हुसैन के साथ अगर 3 दिन की भूख और प्यास को बर्दाश्त करे तो हैरत न कीजिए, इसलिए कि बीबी जानती है कि मेरा मकसद दुनिया में आके दुनिया परस्ती नहीं है। जैसे मेरे बाबा का मकसद था वही मेरा है, जो नाना का मकसद था वही मेरा है, जो माँ का मकसद है वही मेरा है, जो हसन और हुसैन का मकसद है वही मेरा मकसद है। ये है जनाब ज़ैनब कुबरा। और ये वो शहजादी हैं कि जिन्होंने करबला के मार्के में खुदा की कसम वो कारनामा अंजाम दिया है कि दुनिया भुला नहीं सकती। इमाम हुसैन की कुर्बानी सिर्फ करबला के मैदान तक है, मगर सानिए ज़हरा मदीने से लेकर करबला और करबला से लेकर कूफा और कूफा से शाम तक, और जब तक जिंदा रही पैगाम इस्लाम को नश्र करती रही, पहुंचाती रही। अगर ये शहजादी न होती तो हुसैन एक सहरा में कत्ल हुए थे, हुसैन एक बियाबान में कत्ल हुए थे, हुसैन एक मैदान में कत्ल हुए थे, दुनिया न जानती। देखिए मैं बहुत अजीब बात कहने जा रहा हूं और इसे समझिएगा। अभी तक जितनी शहादत इस घराने की हुई थी वो सब घर में, करिए में, शहर में हुई थी। मदीने में शहादत हुई है, कूफे में शहादत हुई है, फिर मदीने में इमाम हसन की शहादत हुई, मगर उतनी आम न हो पाई जितनी एक सहरा में कुर्बानी सुबह क़यामत तक आम है और रहेगी। इसकी जिम्मेदार कौन है? इस कारनामे को अंजाम किसने दिया है? हमारी और आपकी ये शहजादी,
जिसने कूफा और शाम के बाज़ारों और दरबारों में अपने खुतबे के ज़रिए वो पैगामात दिए हैं, वो जवाबात दिए हैं बरजस्ता, कि लोग कह रहे थे कि ऐसा मालूम होता है कि जैसे अली बोल रहे हैं, जैसे मालूम होता है कि अली बोल रहे हैं। ये वो शहजादी है कि जो अपने भाई के मिशन को, जो दीन इस्लाम को, जो नाना की शरीयत को आगे बढ़ा रही थी। बस मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर रहा हूँ सिर्फ इस एक फ़ज़ाइल के टुकड़े के ज़रिए। मौलाए कायनात, मैंने कहा कि एक बाप और एक बेटा, कोई है जो ये कहे कि इन दोनों का कोई मुकाबला है? हर अजमत से, हर एतबार से, हर फजीलत में कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं ना। मगर एक वाक़या मिलता है तारीख़ में कि एक रोज़ मौलाए कायनात ने खुद कहा इमाम हुसैन आली मकाम से कि मेरे लाल, तुम्हारे और हमारे दरमियान में ये बताओ कि साहिब फ़ख्र कौन है? कौन साहिब फ़ख्र है? इमाम हुसैन लरज़ गए, कहा बाबा आपके सामने मैं जुर्रत करूं, मैं ये कहूं कि हम में और आप में कौन साहिब फ़ख्र है, बुलंद है? देखिए यहां फजीलत की बात थी, मगर इमाम हुसैन लरज़ गए। आका अमीर अल मोमिनीन ने खुद कहा कि जब मैं कह रहा हूं मेरे लाल तो अब तुम बयान करो, जब मैं खुद कह रहा हूं तो तुम बयान करो। कहा बाबा अगर आपका हुक्म है तो फिर आप इजाज़त दे रहे हैं तो मैं अपनी ज़बान को खोलूँगा। जाहिर सी बात है, अमीर अल मोमिनीन है, सिर्रुल्लाह फिल आलमीन है, कायनात के अमीर हैं, वजहुल्लाह हैं, नफ्सुल्लाह हैं, दोष पैगंबर पर बुलंद होने वाले हैं। और इमाम हुसैन अपने बाबा के सामने जुर्रत कर सकते हैं? मुमकिन नहीं है। मगर मौलाए कायनात चाहते हैं कि नहीं तुम बयान करो। तो आपने फरमाया अंता अफजलो मिन्नी, देखिए गौर कीजिएगा और मैं इसी पर तकरीर ख़त्म कर दूँ। अंता अफजलो मिन्नी, इमाम हुसैन ने फरमाया बाबा फजीलत में आप मुझसे बुलंद हैं, फजीलत में आप मुझसे बुलंद हैं, अंता अफजलो मिन्नी। और उसके बाद फरमाते हैं कि अना अफकरो मिनका, और फख्र में मैं आपसे बुलंद हूं। मेरे तमाम सुनने वालों से तवज्जो चाह रहा हूं, बस ये मेरा आज इस तकरीर, इस जश्न की तकरीर का आखिरी जुमला है जो मैं इसी पर गुफ्तगू ख़त्म कर दूंगा, दुआ करूंगा। और उसके बाद शोराए कराम है आपके सामने, और बेहतरीन शोराए कराम, खुदा इन्हें सलामत रखे और इनके नजराने अकीदत को कबूल करे, इनकी तौफीक़ात में इजाफा करे, आप सब पे खुदा रहमत नादिल करे। जैसे ही अली की इजाज़त मिली, का फजीलत में आप बुलंद हैं, फ़ख्र में मैं बुलंद हूं। का बेटा वो कैसे? का ये बताइए जैसा नाना मेरे पास है। क्या बात है, वाह। जैसा नाना मुझे मिला है आपको मिला है? अली फरमाते नहीं मेरे लाल। जैसा बाबा मुझे मिला है आपको मिला? अली फरमा नहीं मेरे लाल। जैसी मादरे गिरामी मुझे मिली आपको मिली? का नहीं मेरे लाल। का जैसा भाई मुझे मिला, देखिए फख्र कर रहे हैं आप, चूंकि इजाजत बाबा की मिली है। का बाबा फख्र में मैं बुलंद हूं, फजीलत में आप बुलंद हैं। जैसा नाना मुझे मिला आपको नहीं मिला, जैसा भाई मुझे मिला आपको नहीं मिला, जैसी माँ मुझे मिली आपको नहीं मिली, जैसा बाबा आप जैसा मुझे मिला आपको नहीं मिला। हल्लाले मुश्किलात हैं, मुश्किल कुशा हैं, सिरुल्लाह फिल आलमीन हैं। जाहिर सी बात है आप और हम सब परेशान हैं कि अमीर अल मोमिनीन के सामने इमाम हुसैन फ़ख्र की बात कर रहे हैं। अमीर अल मोमिनीन वो जिनके दर से कोई खाली नहीं गया, जहां मुश्किलों ने दम तोड़ दिया। देखिए गौर कीजिएगा। अब अली जवाब क्या दे, बस आखिरी जुमला। अली ने आवाज दी, अली उठे। ये फख्र करने के बाद हुसैन को अली ने सीने से लगाया, पेशानी को बोसा दिया और एक जुमला कहा, ए मेरे लाल, जैसा बेटा तुम जैसा मेरे पास है, क्या तुम्हारे पास भी है? का जैसा बेटा मेरे पास हुसैन जैसा है, ए हुसैन तुम्हारे पास भी वैसा बेटा नहीं है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद।
मोहम्मद वाले मोहम्मद। हुसैन ने सबकी ज़ात पर फ़ख्र किया, अली ने हुसैन की ज़ात पर फ़ख्र किया। ये है हुसैन की मंजिलत, ये है हुसैन की अज़मत, ये है हुसैन का मकाम, हुसैन का मर्तबा। आइए दुआ करें आका हुसैन के सदक़े में, शहज़ादी सानिया ज़हरा के सदक़े में परवरदिगार हमारी इस इबादत को कबूल फ़रमाए। परवरदिगार हम सब की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमाए। परवरदिगार जो लोग बीमार हैं उनको बीमार करबला के सदक़े में सेहत कामिल और आजिल मरहमत फ़रमाए। परवरदिगार यकीनन इस जश्न में न मालूम कितने लोग जब से ये जश्न हो रहा है शिरकत कर रहे थे, आज इस दुनिया में नहीं हैं। और आज चूँकि आप सबको मालूम होगा या नहीं मालूम है तो मालूम हो जाए कि आली जनाब मौलाना तहज़ीबुल हसन साहब क़िबला का आज इंतकाल हो गया था, तदफीन हुई है आज़मगढ़ में। और उनको भी परवरदिगार गरीक़ रहमत फ़रमाए, उनके दर्जात को बुलंद करे। और जिन लोगों ने दुआओं के लिए मुझसे कहा है परवरदिगार उन सब की दुआओं को मुस्तजाब फ़रमा। परवरदिगार हम सबको हज्ज बैतुल्लाह में मासूमीन की ज़ियारत नसीब फ़रमा। परवरदिगार हम सबको हर आफत हर बला से महफूज फ़रमा। इस जश्न को ता सुबह क़यामत इसी तरीक़े से कायम व दायम फ़रमा। परवरदिगार आइंदा साल भी हम सबको, बानियान को और तमाम शोरा इकराम को, तमाम मोमिनीन और मोमिनात को इस जश्न में सेहत व सलामती और हयात के साथ शिरकत करने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमा। परवरदिगार बेहक़ मज़लूम करबला के यूसुफ़ ज़हरा इमाम ज़माना का जल्द से जल्द ज़हूर फ़रमा। हम सब को उनके आवान व अंसार में शुमार फ़रमा। आइए फिर एक मरतबा मुबारकबाद पेश करें इन दोनों शहज़ादे और शहज़ादी की विलादत और इस जश्न के सिलसिले से बारगाह खुदाबंदी में, बारगाह रिसालत माब में, बारगाह अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम में, बारगाह इमाम ज़माना में एक सलवात आप मिलजुल कर पढ़ दें। मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। समात फरमा रहे थे आप हज़रात हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद अज़ीज़ हैदर ज़ैदी साहब क़िबला को अपने मखसूस अंदाज़ में आप हज़रात की खिदमत में नज़राने अक़ीदत पेश कर रहे थे। हज़रात आप तमाम मोमिनीन से इल्तिमास है कि ये जश्न अंजुमन सिपाही हुसैनी की जानिब से मुनक़िद किया गया है, लिहाजा अंजुमन सिपाही हुसैनी के जो मरहूमीन कल तक हमारे दरमियान थे अब नहीं हैं, उनके लिए और वो मरहूमीन जो पर साल इस जश्न में शरीक थे लेकिन आज नहीं हैं हमारे दरमियान में, उसके अलावा मौलाना महमूदुल हसन ख़ान साहब, मौलाना तहज़ीबुल हसन साहब जो हमारी अंजुमन के सरपरस्त थे, आज उनकी तदफीन हो गई है, उनके लिए। और एक अजीब सानहा था जनाब मोहतरम कैसर अकील साहब के साहबजादे का कुछ दिनों पहले इंतकाल हुआ है, यासिर अब्बास इब्न कैसर अकील। इन तमाम मरहूमीन के लिए एक मरतबा मिलजुल के सूरह फातिहा पढ़ दीजिए।